ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قبرستان میں بہت سی بھوتنیاں مل کر رہتی تھیں۔ ان میں ایک بوڑھی بھوتنی تھی جو بہت سمجھدار تھی۔ جب بھی دوسری بھوتنیاں کسی مشکل میں آتیں تو یہ بوڑھی بھوتنی ہی انہیں مشورہ دیتی۔ ایک دن وہ بوڑھی بھوتنی قبرستان میں چل چل کر تھک گئی اور ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی ایک جوان بھوتنی ادھر آئی اور بولی، تم میری جگہ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تم کون ہو؟ بوڑھی بھوتنی نے بولا، تم بھی تو میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہو۔ جوان بھوتنی بولی، تم ہو کون؟ بوڑھی بھوتنی نے کہا کہ اس قبرستان کی سب سے سمجھدار بھوتنی ہوں میں۔ جب بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو میں ہی مشورہ دیتی ہوں۔ جوان بھوتنی بولی، میں بھی تو بہت پریشان ہوں آج کل، مجھے بھی آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں، مجھے تم بتاؤ، تم کیوں پریشان ہو؟ جوان بھوتنی بولی، جس برگد کے پیڑ پر میں رہتی ہوں اس کے پاس ایک پرانا گھر ہے۔ کچھ سمے پہلے ہی ایک سنگیت کار بھجکو ونت وہاں رہنے کے لیے آ گیا ہے اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اسے سنگیت سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی آوازوں سے میں بہت بے سکون ہوتی ہوں۔ مجھے وہ گھر خالی کروانا ہے۔ بوڑھی بھوتنی بولی، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں تو اس سے بھی بڑے بڑے مسئلے حل کروا سکتی ہوں۔ بوڑھی بھوتنی نے اسے ایک حل بتایا اور جوان بھوتنی خوش ہو گئی اور بھجکو ونت کے گھر رات کو گئی۔ جوان بھوتنی بہت سے روپ دھارن کر سکتی تھی۔ جلد ہی وہ ایک بلی میں بدل گئی اور عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ کھڑکی سے بلی اس کمرے میں کود گئی جدھر بھجکو ونت سو رہا تھا۔ بلی کی آواز سن کر بھجکو ونت نیند سے جاگ اٹھا۔ کون ہو تم اور ادھر کیوں آئی ہو؟ میں ایک بہت بری بھوتنی ہوں اور میں بہت سے روپ دھارن کر سکتی ہوں اور کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ اور فوراً ہی جوان بھوتنی چمگادڑ بن گئی۔ اس پر بھجکو ونت پرسکون انداز میں بولا، ایسا کرو تم ایک بلی ہی بنی رہو اور سارے گھر میں گھومو پھرو، کیونکہ اس گھر میں بہت سے چوہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم چھپکلی بن جانا اور اس گھر کے سارے مچھر مار ڈالنا، سمجھ گئی نا؟ او بھجکو ونت، تم کو کیا لگتا ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ہے جو تمہارے گھر کے چوہے اور مچھر کھاؤں گی؟ ایسا کہہ کر وہ جوان بھوتنی وہاں سے چلی گئی اور بوڑھی بھوتنی سے جا کر ملی اور بولی، میں وہاں گئی مگر تمہارا مشورہ کام نہیں آیا۔ بھجکو ونت ایک بہت بہادر آدمی ہے۔ بوڑھی بھوتنی بولی، چلو کچھ اور سوچ لیتے ہیں اس کے لیے، میرے پاس بہت سے مشورے ہیں۔ اس کے بعد جوان بھوتنی اگلی رات دوبارہ سے بھجکو ونت کے گھر گئی اور اس کے گھر کی ساری ٹائلز نکال کر توڑ پھینکی۔ آواز سن کر بھجکو ونت کی آنکھ کھل گئی اور باہر آیا، کون ہے جو میری ٹائلز ہٹا رہا ہے؟ میں ہی ہوں جو کل یہاں آئی تھی اور میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ بھجکو ونت فوراً سے بولا، میں ویسے بھی گھر کے اوپر کی چھت ہٹا کر دوسری ڈالنے کی سوچ رہا تھا مگر تم صبح تک یہ ساری ٹائلز ہٹا ہی دو گی۔ چلو تم اپنے کام پر لگ جاؤ، میں تو سونے جا رہا ہوں، اور ہاں صبح تک ساری ٹائلز ہٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر بھجکو ونت سونے چلا گیا۔ ارے تمہیں میں کیا مزدور لگتی ہوں، ڈھیٹ آدمی! جوان بھوتنی وہاں سے اڑ گئی اور بوڑھی بھوتنی کے پاس گئی اور بوڑھی بھوتنی بولی،
کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو؟ جوان بھوتنی بولی، میں نہیں بلکہ اس نے مجھے ڈرا کر بھگا دیا۔ یہ سب سن کر بوڑھی بھوتنی کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، اچھا تو تمہیں میں ایک اور مشورہ دیتی ہوں، تم جا کر اب یہ کرو۔ اگلی رات جب جوان بھوتنی بھجکو ونت کے گھر گئی اور اس کے کندھے پر تھپ تھپایا، ارے تم پھر آ گئی، تم نے میری نیند خراب کر کے رکھی ہوئی ہے، روز مجھے جگا دیتی ہو۔ جوان بھوتنی بولی، تم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ میری جگہ ہے، تمہارے سنگیت کی وجہ سے میں بہت بے سکون ہوں۔ بھجکو ونت بولا، میری قسمت بہت اچھی ہے کہ یہ گھر مجھے مفت میں ہی مل گیا، میں اس گھر کو خالی نہیں کروں گا، تم کو نہیں پسند تو تم چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر سونے چلا گیا اور بولا، مجھے اب سونا ہے اور اس طرح بار بار رات کو آ کر مجھے نہیں جگایا کرو۔ جوان بھوتنی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے اور وہ فوراً واپس لوٹ گئی اور اداس ہو کر جنگل میں بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے دوسروں کو صلاح دینا آسان ہے، بوڑھی بھوتنی کی ایک بھی صلاح مجھے کام نہیں آئی، اپنی مصیبت کا حل خود نکالنا بہتر ہوتا ہے۔ اب میں اپنے مسئلے کا حل خود ہی سوچوں گی۔ جوان بھوتنی نے کچھ سوچا اور پھر بھجکو ونت کے گھر گئی اور بولی، مجھے آپ سے سنگیت سیکھنا ہے اور میں اپنی ساری غلطیوں کی آپ سے معافی مانگتی ہوں اور اب سے میں آپ سے سنگیت سیکھا کروں گی جیسے باقی لوگ سیکھتے ہیں۔ ایسا سن کر بھجکو ونت حیران ہو گیا کیونکہ اس نے کچھ ہی دنوں میں پیسہ اور نام کما لیا تھا۔ اگر سب کو یہ پتہ لگا کہ وہ بھوتوں کو بھی سنگیت سکھا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ آئے گا اور گاؤں والے بھی اسے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ بھجکو ونت بولا، اچھا ٹھیک ہے، کسی بھی اچھے سے دن آ جاؤ اور سنگیت سیکھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد اگلے ہی دن بھجکو ونت نے اپنا سارا سامان باندھا اور بنا کچھ سوچے اسی گاؤں میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اس طرح جوان بھوتنی نے اپنے مسئلے کا حل خود ہی ڈھونڈ نکالا اور پرسکون ہو کر رہنے لگی۔ بلی اور چوہے کی کہانی۔ جنگل میں ایک ندی کے کنارے ایک درخت پر ایک بلی رہتی تھی۔ اس پیڑ کے نیچے ایک بل میں چوہا بھی رہتا تھا۔ بلی ہمیشہ چوہے کو پریشان کرتی رہتی تھی اور چوہے کو مارنے کی کوشش میں ہی لگی رہتی اور چوہا بیچارہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا۔ ایک رات جنگل میں ایک شکاری آیا اور اسی پیڑ کے نیچے اپنا جال بچھا کر چلا گیا، اس ارادے سے کہ کوئی چھوٹا شکار اس میں ضرور پھنسے گا۔ صبح جب بلی کی آنکھ کھلی تو اس نے بنا کوئی سوچے سمجھے اور ارد گرد دیکھے بنا جال کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ جال میں پھنس گئی۔ جال میں پھنس کر بلی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور چھلانگیں لگانے لگی مگر وہ ناکام ہو گئی۔ بلی بہت دکھی اور پریشان ہو گئی۔ بلی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئی۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، بلی چیختی رہی۔ بلی کے شور کو سن کر چوہا بھی باہر آ گیا اور باہر آ کر جب اس نے بلی کو دیکھا تو خوشی سے بولا، آہا، مجھے تو اب ڈر کر نہیں رہنا پڑے گا،
इस बिल्ली से तो अब मेरी जान छूट जाएगी। वो बिल्ली को इस तरह दुखी और परेशान देखकर दिल में बहुत खुश हो गया, मगर वक्ती तौर पर बिल्ली से हमदर्दी करते हुए बोला, दोस्त, तुम तो बुरी तरह फंस चुकी हो जाल में। बिल्ली बोली, मुझे बचाओ, कुछ भी करके मुझे बचा लो। बिल्ली बहुत दुखी थी। चूहा बोला, हम तो जानी दुश्मन हैं ना, तो रहम खाकर अगर मैं तुम्हें छुड़ा दूं तो तुम तो मुझे मार डालोगी। अपनी जान ऐसे तो नहीं गंवा सकता मैं। बिल्कुल उसी वक्त एक कौवा उधर आ गया और कौवे को देखकर चूहा बहुत डर गया और फौरन जाकर बिल्ली के जाल के पास खड़ा हो गया और बिल्ली को जाल से छुड़ाने जैसी एक्टिंग करने लगा। कौवे ने देखा कि चूहा बिल्ली को छुड़ा रहा है जाल से। कौवा डर गया और सोचा, अगर ये बिल्ली बाहर आ गई तो वो तो मुझे मार डालेगी। ये सोचकर कौवा फौरन वहाँ से उड़ गया। कौवे को उड़ता देखकर चूहा वहाँ से निकल गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। बिल्ली को गुस्सा आ गया और पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? जाल खोले बिना चले गए तुम। गुस्से में चूहे ने बोला, मैं तुम्हें क्यों छुड़ाऊं? तुम तो मेरी दुश्मन हो। मैं तो कौवे को देखकर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हो गया था और अब चूंकि कौवा जा चुका है तो मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। ये बोलकर चूहा वहाँ से भागने ही वाला था कि उसने वहाँ शिकारी को आते देखा जो जाल के पास ही जा रहा था। चूहे ने कुछ भी सोचे बिना जल्दी से जाकर जाल को काट दिया और बिल्ली को आज़ाद कर दिया और इस तरह ये दोनों दोस्त बन गए। एक दिन बिल्ली बोली, तुम मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी और हम दोनों मिलकर वहाँ खेलेंगे। चूहा बोला, नहीं दोस्त, तुम्हारे घर में अगर आऊँगा तो तुम मुझे खा लोगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आने वाला। ऐसा कहकर चूहा अपने बिल में भाग गया। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ये समझो कि हमेशा हमारे दुश्मन दुश्मनी नहीं जताते। इसी तरह बुरे लोगों पर हमें पूरी तरह भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए और थोड़ा फासला रखना चाहिए। चोर लोमड़ी की कहानी। जंगल के बिल्कुल नज़दीक एक बहुत बड़ा और जादुई तालाब था जिधर बहुत सी पानी की मखलूक मिलकर रहती थी। इस जंगल में रहने वाला एक जैकी लोमड़ी रोज़ उसी तालाब में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इस जादू के तालाब की गहराइयों में असल में रहता कौन है। जैकी हमेशा इस तालाब से छोटी मछलियाँ ही पकड़ता था। वो रोज़ खुश हो जाता कि इस नदी में कितने सारे मछली हैं और ये सब बहुत मज़े के हैं। एक दिन जब वो मछलियाँ पकड़ रहा था तब उसे एक केकड़ा दिखाई दिया। अरे वाह, केकड़ा! मैंने केकड़ा बहुत दिनों से नहीं खाया, आज इस केकड़े को ही खाता हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक और राजू लोमड़ी आ जाता है। वो जैकी को देखकर दिल में सोचता है, तुम केकड़ा पकड़ने जा रहे हो, मगर ये केकड़ा पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि इसे तो मैं ही पकड़ूंगा। ये सोचते ही वो चुपके से जैकी को पीछे से जाकर धक्का दे देता है और जैकी बेचारा पानी में गिर जाता है। जैकी को पानी में धक्का देकर
राजू लोमड़ी केकड़े को पकड़ने लगता है, लेकिन केकड़ा उसे काट लेता है और राजू लोमड़ी दर्द से चिल्लाने लगता है। केकड़ा बोला, आइंदा मुझे मत पकड़ना, वरना ऐसे ही काटकर मार डालूंगा। और इधर जैकी लोमड़ी जब डूब रहा था तब वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ राजू लोमड़ी, मुझे तैरना भी नहीं आता। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? ये केकड़ा तो मुझे खाना था, मगर इसने मुझे ही काट लिया। अब मैं तुम्हें भी नहीं बचाऊंगा। जैकी बेचारा खुद को बचाने की कोशिश करते करते पानी में डूब गया और पानी की गहराइयों में चला गया। पानी की गहराइयों में जाकर उसे बहुत अजीब महसूस हुआ कि पानी में डूबने से उसकी मौत होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो जिंदा है और सांस लेने में भी कोई मसला नहीं है। फिर वो चारों तरफ देखता है। वहाँ पर हर तरफ जादुई परियां। उसने देखा आसपास रंग बिरंगी बहुत सी जल परियां घूम रही हैं। क्या आप लोग सच में जल परी हो या मैं मरकर दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ? नहीं, तुम जिंदा हो। इस जादुई तालाब में किसी की भी मौत नहीं होती, लेकिन हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि तुम यहाँ से लौटने के बाद हम लोगों के बारे में किसी को भी मत बताना, और बदले में हम तुम्हें एक मछली की टोकरी हर रोज़ देंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम लोग एकदम से बेफिक्र रहो। और फिर नीली जलपरी और लाल जलपरी जैकी को तालाब से बाहर छोड़ देते हैं, और इसके बाद लाल जलपरी हाथ घुमाती है और एक टोकरी मछली की जैकी को देती है, और जैकी खुश होकर टोकरी साथ लिए घर चला जाता है। मगर रास्ते में राजू लोमड़ी इसको देख लेता है और सोचता है, इसको तो मैंने पानी में धक्का दिया था और ये डूब भी गया था, मगर ये मरा क्यों नहीं? ये तो खुश होकर मछली टोकरी की भरकर साथ भी लेकर जा रहा है। ये राज तो मुझे पता लगाना ही होगा। उधर जैकी जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी पूछती है कि इतनी देर से क्यों आए हो और इतनी ज़्यादा मछलियाँ किधर से ले आए? फिर जैकी अपनी बीवी को सब कुछ बता देता है, मगर चुपके से उसकी ये सब बातें राजू लोमड़ी खिड़की से बाहर खड़े होकर सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी जाकर इस तालाब में डुबकी लगाता हूँ। और फिर उसके बाद ये कहते ही राजू लोमड़ी तालाब में जाकर डुबकी लगाता है और पानी की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। बहुत सी रंग बिरंगी जल परियाँ उसको दिखाई देती हैं। जैकी को देखकर जल परियाँ बहुत हैरान होती हैं। तो तुमने हम सबको देख लिया, तुम्हें भी हम जैकी की तरह तालाब के ऊपर पहुंचा देंगी और एक टोकरी मछली की भी देंगे। नहीं नहीं, मुझे ऊपर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो तैरना आता है और मुझे वो एक टोकरी मछली की नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें खाऊंगा। ओ क्या मुसीबत है, ये किधर से आ गया? भागो इधर से और अपनी जान बचाओ। सभी जलपरियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गईं, मगर राजू लोमड़ी नीली जलपरी को पकड़ लेता है और खींचकर ज़बरदस्ती पानी से बाहर ले आता है। छोड़ दो मुझे इस तरह से मत खाओ। तुम्हें छोड़ना तो दूर की बात, अब तो मैं तुम्हारे जैसी एक जलपरी रोज़ पकड़ कर खाऊंगा।
जल परी के रोने की आवाज़ सुनकर जैकी दौड़ता हुआ तालाब के पास आता है। ये क्या कर रहे हो राजू लोमड़ी? जल परी को अभी छोड़ दो। तुम इनको कमज़ोर मत समझो। चुप करो, ज़्यादा मत बोलो। ये मेरा शिकार है और मैं इसको पानी की गहराइयों से पकड़कर लाया हूँ। ये कहते ही जब वो जल परी को काटने लगता है, तभी वो जल परी एक परों वाली परी का रूप ले लेती है और उड़ते हुए जल परी अपने जादू से राजू लोमड़ी को एक मेंढक बना देती है। ये क्या, मैं तो मेंढक बन गया। अब से मुझे भी पानी में ही रहना पड़ेगा। ये कहते ही वो पानी में कूद जाता है। फिर जल परी बोली, जैकी, तुम्हें भी ये सब कुछ भूलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से राजू लोमड़ी को पता चला तालाब के नीचे की दुनिया का। इसलिए अब तुम्हें ये सब कुछ भूलना पड़ेगा। ये कहते ही जल परी जैकी को तो सेब देती है और कहती है, जाओ और जाकर तुम और तुम्हारी बीवी ये सेब खा लो। और ये कहते ही वो वापस तालाब में कूद जाती है। अलविदा। इसके बाद जैकी परी के कहने के मुताबिक घर जाते ही वो सेब अपनी बीवी और ख़ुद भी खाकर सो जाता है। और अगले दिन नींद से उठकर फिर से जैकी अपनी मछली पकड़ने की पुरानी आदत के साथ छड़ी लेकर हर दिन की तरह तालाब की तरफ जाता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि तालाब में क्या हुआ था। बिल्ली और चूहा। दोस्तों, आज के दौर में बिल्ली और चूहे के दरमियान बहुत गहरी दुश्मनी है। दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं बच्चों कि ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? चलिए थोड़ा बैक चलते हैं और देखते हैं कि इनके बीच ऐसा क्या हुआ जो ये दुश्मन बन बैठे। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। उस गांव के मुखिया का एक अनाज का गोदाम था। उसी गोदाम में वो रहता भी था और गोदाम में एक छोटा सा चूहा भी रहता था जो कि अनाज खा खा कर एकदम बहुत मोटा हो चुका था। अनाज का मालिक मुखिया उस चूहे से बहुत परेशान था, मगर चूहा बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन मोटा चूहा बाहर टहल रहा था, तभी उसे एक कोने में बैठी बिल्ली दिखाई दी। क्या हुआ बिल्ली? बिल्ली बोली, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। चूहा बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करता हूँ। जैसा मैं बोलूँ तुम वैसा ही करना। बिल्ली मान गई। चूहे ने सारी तरकीब बिल्ली को समझाई और तरकीब के मुताबिक चूहा अपने काम पर लग गया। चूहा अपने प्लान के मुताबिक गोदाम में मुखिया के सामने इधर उधर भागने लगा। चूहे को ऐसे भागता देखकर मुखिया बहुत परेशान हो गया और बोला, ये चूहा तो मुझे एक दिन बर्बाद कर डालेगा, मैं क्या करूं इसका? प्लान के मुताबिक बिल्कुल उसी वक्त बिल्ली गोदाम में आ गई और चूहे के पीछे भागने लगी। ये सब देखकर मुखिया को एक तरकीब समझ में आई और उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बिल्ली को रख लूं, ये इस चूहे को गोदाम से भगा देगी।
इसने चूहे का इंतज़ाम करने के लिए बिल्ली को अपने पास रख लिया और बहुत सारा खाना भी दिया। बिल्ली ने पेट भरकर खाना खाया और बहुत खुश हुई क्योंकि उनका प्लान अब कामयाब हो चुका था। पेट भरने के बाद बिल्ली टहलती हुई चूहे के पास आई। दोस्त, तुम्हारी तरकीब तो बहुत कमाल की थी। अब हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे और जब भी मुखिया सामने होगा मैं तुम्हें पकड़ने का नाटक करूँगी, ठीक है? अब हम दोनों भूखे नहीं रहेंगे। शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो और तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इस तरह ये दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चूहा गोदाम में दालें, शक्कर, गंदम खाता रहता और बिल्ली मज़े से दूध और बिस्किट खाती रहती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर एक दिन बिल्ली की नीयत बदल गई। बिल्ली ने सोचा, मुझे अपने रहने के लिए घर मिल गया है, रोज़ इतना अच्छा खाना भी मिलता है खाने को, क्यों ना मैं इस चूहे को मार कर यहाँ से भगा दूँ। मुखिया खुश होकर मुझे हमेशा के लिए इस घर में रख लेगा। ये सोचकर बिल्ली ने चूहे को सच में पकड़ लिया और ज़ख्मी करके दूर घर से बाहर छोड़ आई। मुखिया ये देखकर बहुत खुश हुआ और बिल्ली को पहले से भी ज़्यादा मज़े का खाना दिया और दूध भी दिया। बिल्ली बहुत फ़ख्र से दूध पीने में मशरूफ़ थी, लेकिन बेचारा चूहा बहुत ज़ख्मी और भूखा बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था, मैं पता नहीं अब बच भी पाऊँगा या नहीं। तभी वहाँ एक चिड़िया आई और चूहे को उठा कर ले गई। कुछ दिन चिड़िया ने चूहे का ख्याल रखा और चूहा बिल्कुल ठीक हो गया। अब चूहे को एक नया दोस्त भी मिल चुका था और इधर मुखिया और बिल्ली भी बहुत खुश थे। मगर मुखिया ने अब सोचा कि अब मेरे गोदाम में कोई चूहा नहीं है, फिर मैं इस बिल्ली को मुफ्त में खाना क्यों खिलाऊं। मुखिया ने ये सोचकर बिल्ली को भी भगा डाला। बिल्ली को अब चूहे के साथ किए बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि जब तक चूहा था तब तक मुखिया उसे खाना देता था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि उसे सामने से आता हुआ चूहा दिखा। अरे चूहे मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? मुझे धोखा देकर पूछती है कि मैं कैसा हूँ। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। वो बहुत नर्म लहजे में बोला, कुछ मत पूछो, कई दिनों से मैं भूखा हूँ दोस्त। तो बिल्ली बोली, तो फिर चलो मुखिया के घर अपना पुराना प्लान पे काम करते हैं। चलो फिर से वही करते हैं। चूहा बोला, ठीक है चलते हैं। बिल्ली हैरान हो गई कि ये पागल फिर मान गया है। चूहा फिर से प्लान के मुताबिक मुखिया के घर चला गया और मुखिया परेशान हो गया कि अब चूहे को कैसे भगाएगा। उसने तो बिल्ली को भी भगा दिया है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बिल्ली भी आ गई और मुखिया बिल्ली को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, ये बिल्ली तो खुद ही आ गई है। मगर इस बार बिल्ली मुखिया के सामने चूहे को ना पकड़ सकी। ये देखकर मुखिया ने बिल्ली को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और इस तरह बिल्ली को धोखा देने की सज़ा मिल गई और चूहा अपनी दोस्त चिड़िया के साथ जाकर रहने लगा और उस तरह इनकी दुश्मनी शुरू हो गई।